Hello students, welcome to the English class of StudyGist, a world of educational solutions. In the previous class, we have learnt about the first type of present tense, that is the simple present or present indefinite tense. Today, we will be learning about the second form of present tense, that is the present continuous tense, and the third form, that is present perfect tense. But before moving on with today's class, I would like to remind you of the ways that you can connect with us in order to gain more study materials and more information about our site. Do like and subscribe our YouTube channel and like us on Facebook. Join us on our Telegram channel. Follow us on Instagram and join our YouTube. Follow us on Instagram and join our WhatsApp community by using the number that is given below. Also, for more information, you can log in to the website, that is www.studygist.in. As you can see here, our YouTube channel looks like this. Do subscribe and share our videos for more study materials. And like us on Facebook. Our Facebook page looks like this. Now, let us continue with today's class. So, in the previous class, we have seen that how the simple present tense is used in normal speech or in case of everyday habits or universal truths. Basically, simple present tense is what we use normally in communication, in terms of writing schedules, in terms of normal colloquial language. But today, I will be taking up another important part, that is the second part of the present tense. ये इसका जो definition है, ये देखिए यहाँ पे. The present continuous tense is used to show an activity that is in progress. This is very important part. This is in progress. Something जो हो रहा है, कुछ जो हो रहा है, वो progress में है. That's why we use the continuous term. Or not complete at the time of speaking. मतलब कि ये अभी हो रहा है at present, वर्तमान में अभी हो रहा है, लेकिन इसका अभी ये अनफिनिश्ड है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है. So this kind of activity started in, you can say, immediate past and will go on into the future. So in this case, the action is ongoing, still going, and hence it is continuous. Okay, so you have to understand this कि ongoing या still going जो action होते हैं उसको समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं present continuous tense. यहाँ पे ये फिर से याद रखिए, कुछ keywords मैंने mention किया है, like now, right now, this quarter, this year, this month. ये जो this month या फिर this week, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं नॉर्मली अगर ये आप कोई सेंटेंसेस में देखेंगे तो यू कैन से कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखा गया है. ठीक है, तो रूल्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ पे रूल्स क्या है? दिस इज फॉर्म्ड विथ इज, आर, एम. इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल, एम फॉर फर्स्ट पर्सन, फॉर मी. ठीक है, प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे आईएनजी जो है वर्ब के साथ जो ऐड होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि रीड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. इसके साथ अगर हम लोग ऐड कर देते हैं आईएनजी तो वो हो जाता है रीडिंग. ठीक है, तो रीडिंग ये जो है मतलब कि मैं अभी कर रही हूं, मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूं. आई एम रीडिंग अ बुक. ओके, सो दैट डिनोट्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फिर देखिए, द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? एडिंग नॉट. ठीक है, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम ही रहेगा
ठीक है, आई आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में बस नॉट ऐड हो जाएगा, क्योंकि नॉट नो जैसे कि हम जानते हैं कि ये नेगेटिविटी को एक सेंटेंस में डिनोट करता है। नेक्स्ट जो है कि द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग इज आर एम बिफोर द सब्जेक्ट एंड ऑब्वियस है ये क्वेश्चन मार्क भी ऐड होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में, मतलब कि इससे क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चंस। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम प्लेइंग, मतलब कि मैं अभी खेल रही हूं। ये जो प्रोसेस ऑफ प्लेइंग है ये अभी चल रहा है। आई एम प्लेइंग, प्ले प्लस ING मतलब V1 प्लस ING ऐड होके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेइंग। ये नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम डांसिंग, एनीथिंग। इसका नेगेटिव क्या होगा, सेंटेंस के बीच में बस नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रही हूं। ये भी क्या डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूटी को, मतलब कि ING यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है एम आई प्लेइंग, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, एम आई नॉर्मली एम के साथ ऐड होता है। अब जब इसको क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो एम क्या होता है, आई इसके पहले आ जाता है, मतलब एम आई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एम आई प्लेइंग। फिर देखिए वी आर प्लेइंग, मतलब कि प्लूरैलिटी ऑफ अ सेंटेंस को समझाया जा रहा है। वी आर प्लेइंग। नेक्स्ट वी आर नॉट प्लेइंग, नेगेटिव सेंटेंस। आर वी प्लेइंग, सिमिलरली जैसे कि एम आई से पहले आ जाता है क्वेश्चन में, वैसे ही आर वी से पहले आ जाता है, क्योंकि हम लोग जब पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, वी आर प्लेइंग। लेकिन इसको जब हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे तो आर आ जाएगा सामने, मतलब कि आर वी प्लेइंग। और हम लोग बोल सकते हैं कि आर वी प्लानिंग टू गो, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाने के लिए। सो दीज काइंड ऑफ वर्ब्स जहां पे ING आप लोग देखेंगे, आर इज, यहाँ पे इज यूज होता है नॉर्मली सिंगुलर फॉर्म के लिए। तो ये सब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स। और देख लीजिए यहाँ पे थर्ड वर्ब, और यहाँ पे देखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, शी ही इट प्लेइंग, यहाँ पे नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव हो जाता है नॉट ऐड होके, ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज पहले आ जाएगा, जैसे कि हम लोग देखिए आर पहले आ जाता है इन प्लूरल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है एंड थर्ड पर्सन है, इसीलिए इज पहले आ जाएगा। तो इज ही प्लेइंग, इज शी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट देख लीजिए कि दे आर प्लेइंग, मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इज तो ऐड नहीं होगा, आर ऐड होगा नॉर्मल सा। दे आर प्लेइंग, नेगेटिव दे आर नॉट प्लेइंग, इंटरोगेटिव आर दे प्लेइंग, आर पहले आ जा रहा है एंड दे प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं कि कहां कहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि मैं अभी स्पीक कर रही हूं, मैं अभी ये क्लास ले रही हूं, अभी इसी टाइम में मैं बोल रही हूं कि आई एम ऑल्सो रीडिंग अ लेटर। तो एट दिस टाइम मतलब प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में जो हो रहा है,
टू एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब मैं बोलते वक्त जो कर रही हूँ, करते जा रही हूँ, कंटिन्यूटी समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. आई एम रीडिंग अ लेटर, ओके, आई एम टेकिंग दिस क्लास, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फिर देखिए, टू एक्सप्रेस एन अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि बहुत रिसेंट फ्यूचर में वो होने वाला है. लाइक आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, बस नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू अमेरिका, नेक्स्ट वीक ही जाने वाली हूं मैं. तो इसको समझाने के लिए मतलब बहुत रिसेंट फ्यूचर में जो होने वाला है, लाइक आई एम गोइंग टू थिएटर टुमारो, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, बस मेंशन किया गया है, देखिए कि कब जाऊंगी. ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आई विल गो टू थिएटर टुमारो. तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये सब हमने मतलब दिखाया है यहाँ पे कि कब एक्शन शुरू होगा, लेकिन वो कब खत्म होगा इसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है. दैट्स वाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है. नेक्स्ट देखिए, लास्ट, फॉर चेंजिंग और इवॉल्विंग सिचुएशन. एग्जाम्पल, पोल्यूशन इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि जो हर वक्त में चेंज हो रहा है, इट इज अंडर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब वो इट इज हैपनिंग राइट नाउ. पोल्यूशन इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इट इज हैपनिंग राइट नाउ. या फिर मैं सबसे एकदम रिसेंट अगर एक एग्जाम्पल दूं कि कोविड-19 इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, मतलब कि ये अभी हो रहा है. दिस इज प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये कब खत्म होगा इसका कोई भी डेफिनेट लिमिट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. दिस इज द थर्ड टाइप विच कम्स अंडर द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से. The present perfect tense connect the past to the present. ठीक है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पास्ट के साथ प्रेजेंट को कनेक्ट करता है. It describes an action that happened in the past and goes right to the present moment. मतलब कुछ अतीत में हुआ था, वो अभी भी चल रहा है. The time of occurrence of the action is not mentioned. Time mention normally यहाँ पे नहीं किया जाता. And it indicates an action that has been completed some time before the present moment. मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं in simpler word कि recent past में कुछ हुआ है. ठीक है, and उसका effect अभी भी चल रहा है. तो that is present perfect tense. And its result affects the present situation. Here the action is complete or has ended and hence perfect. Now remember this one thing कि perfect जो term है, जो हम लोग हर एक tense में मतलब past, present या फिर future में use करते हैं, this denotes completeness. किसी भी एक्शन का कंप्लीट हो जाना, मतलब कि वो पास्ट में हो सकता है, वो फ्यूचर में हो सकता है, वो प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन उसको हम कब परफेक्ट बोलेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाता है. तो उसको रेफर करके अगर मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन को बोलूं कि कुछ एक्शन रीसेंट पास्ट में शुरू हुआ था, वो अभी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन तक चल के खत्म हो चुका है एंड उसका इफेक्ट अभी भी है, तो वो सब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में. यहाँ पे जो कीवर्ड्स यूज होते हैं दैट इज ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर. टाइम्स मतलब यहाँ पे कुछ भी टाइम मेंशन किया जा सकता है. सिंस अ पर्टिकुलर टाइम मतलब सिंस लास्ट वीक, सिंस 5 years ये हो सकता है.
फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि फॉर 2 hours हम लोग बोल सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो कीवर्ड्स हैं ये जहां भी ऐड होते हैं या जहां भी सेंटेंसेस में देख पाते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इसके रूल्स क्या क्या है देख लीजिए। दिस इज फॉर्म्ड विथ हैज हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज कहां पे यूज होगा? हैज मतलब कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, हैव मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, एंड V3 द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन बीच में नॉट आ जाएगा। नॉट मीन्स नेगेटिव। द इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? हैज हैव के आगे हम लोग सब्जेक्ट को डाल देंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आई हैव प्लेड, देखिए यहां पे एक चीज, यहां पे ये जो वर्ब का फॉर्म है V3 है ये, ठीक है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि दिस इज V3, दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन पास्ट टेंस, तो यहां पे क्यों यूज हो रहा है? ये हम लोग बोल सकते हैं कि हैव यहां पे जो है ये डिनोट करता है प्रेजेंट टेंस को। इसीलिए अगर हम हैव जो कि प्रेजेंट को डिनोट करता है या फिर हैज जो भी प्रेजेंट को डिनोट करता है, इसके साथ जब V3 हम लोग ऐड करते हैं तो हम वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने बोला था कि इट डिनोट्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, तो V3 क्या करता है? V3 भी कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन को ही समझाता है। इसीलिए आई हैव प्लेड मतलब मैं खेल चुकी हूं, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव देखना कि हैव यूज हुआ है कि नहीं, यहां पे ये देखना है। नेगेटिव में क्या होगा कि आई हैव सेम रहेगा, प्लेड भी सेम रहेगा, नॉट बीच में ऐड हो जाएगा टू डिनोट द नेगेटिविटी। हैव आई प्लेड, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव आगे आ जाता है, उसके बाद आई आ जाता है, फिर प्लेड एंड क्वेश्चन मार्क। वी हैव प्लेड प्लूरल, यहां पे वी हैव नॉट प्लेड, एंड इंटरोगेटिव में हैव वी प्लेड। यहां पे देखिए नॉर्मली आई के साथ हैव यूज होता है, फिर वी के साथ जो प्लूरल है एंड दे जो भी प्लूरल है उसके साथ हैव ऐड होता है। सो दे हैव प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड, यहाँ पे नॉट आ गया है एंड क्वेश्चन मार्क ऐड होके क्या होगा? हैव आगे आ जाएगा एंड ये क्वेश्चन फॉर्म कर लेगा। दैट मीन्स हैव दे नॉट प्लेड। एंड लास्ट में जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट जो भी हो सकता है, ही हैज प्लेड। ही हैज मतलब कि हम लोग ये यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। तो ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट प्लेड और शी हैज नॉट प्लेड। एंड इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज आगे आ जाएगा एंड हैज शी प्लेड और हैज ही प्लेड एंड क्वेश्चन मार्क। इसका यूजेस क्या क्या है? टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि रिसेंट पास्ट में शुरू हुआ था, अभी अभी खत्म हुआ है, उसका इफेक्ट अभी भी है, तो दैट्स व्हाई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक, मैंने अभी अभी ये बुक खत्म किया है, मतलब इसका इफेक्ट अभी भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस actions when the time is not given and not definite. I haven't had dinner yet, मतलब कि अभी recent past से ही इसको कनेक्ट करके हम लोग प्रेजेंट को डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, नॉट येट। यहाँ पे ये येट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डिनोट्स कि देयर इज नो डेफिनेट टाइम लिमिट।
To express past actions or events, the results of which still persist. That means he has had a bad accident. मतलब कि पास्ट में हुआ था एक्सीडेंट लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट. लास्ट, to express an action that began in the past and continues up to the present moment. I have lived here for 5 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली फॉर, सिंस ये सब यूज करके हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि एक टाइम पीरियड को हम लोग समझाते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि पास्ट में एक टाइम में कुछ काम शुरू हुआ था जो अभी भी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट तक चल रहा है. सो आई कैन से दैट आई हैव slept since, या इसको देख लेते हैं नेगेटिव में. जस्ट अ मोमेंट. इसको नेगेटिव में अगर मैं बोलूं कि आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस लास्ट नाइट. ठीक है, तो लास्ट नाइट जो टाइम ड्यूरेशन है उसको समझाने के लिए सिंस. तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ, सिंस या फिर फॉर, सिंस यहाँ पे जो यूज होता है जब भी हम लोग कोई सेंटेंस में देखेंगे एंड उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो वो नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.